Very good evening, everyone. My name is Sanjeev Roy, and I welcome you all on behalf of Mindsculptors IAS. As I had discussed in one of my videos, that we are going to bring in for the aspirants of 69th BPAC mains, a mains content booster series. And here we are with that series, mains content booster series. Today, I'm here with facts and data. I'm complete. I'll name it as purely fact, or you can call it factly, right? Purely facts. Either you call it purely facts or call it factly, or whatever you may say. So today we're going to start this series with the facts with regard to polity and governance. This you'll find in one of the videos that in which I have discussed the syllabus. There you can see that it is covered in a GS paper 2, right? Where in the polity is concerned. That is the paper where it covers polity, and these are the data that I have sorted after very much rigorous search of topics, right? So here we are starting with polity and governance, and in the this topic, under this topic, the first is governance, right? In governance there are three important pointers, that is RTI application, case pendency, and rejection rate. It is with regard to RTI, and RTI is very much important if you'll if you'll go for mains examination, right? RT can be quoted anywhere, because when we go for answer writing, transparency, the administration to be easier, the RTI is one of the finest tools in the hands of citizens. So here we are with the data, that is 4800 RTI are filed every day, and out of which 1.75 crores RTA applications have been filed since 2005, since the act was enacted. Since the act was enacted, उस समय से लेकर के अभी तक टोटल आरटीआई कितने फाइल हो चुके हैं? टोटल आरटीआई फाइल हो चुके हैं 1.75 करोड़। तो इस डेटा को आप लोग कहीं पे भी उस हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, केस पेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटीआई हम फाइल तो कर देते हैं, लेकिन उसमें से कितने का रिस्पॉन्स आता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डेटा को जब आप कोट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलता है अपने आंसर राइटिंग में। इस डेटा को हम लोग डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट करेंगे। सो द डेटा इज नियरली 3.15 लाख कंप्लेंट्स or appeals are pending with 26 information commissions across the country. तो 3.15 lakhs complaints और appeals are pending, right? तो ये पेंडेंसी है, केस पेंडेंसी। और रिजेक्शन रेट कितना है? 4.3%। ये हालांकि घटा है 8.4% से, जो कि 2014-15 में हुआ करता था। अब ये घट करके 4.3% हो गया है। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि 83% इंक्रीज हुआ किस चीज में? रिजेक्शन ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस में। किस ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से 83% इंक्रीज हो गया है किस चीज में? In pendency, national security have become grounds for rejection of RTI application, right? तो ये हमारा किस में आएगा? ये गवर्नेंस के अंडर कवर हो जाएगा। और गवर्नेंस के अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंटर्स पढ़े: RTI एप्लीकेशन, केस पेंडेंसी एंड रिजेक्शन रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, and the next is e-governance. E-governance, when you'll come to the e-governance, you'll find there are two very important pointers, and that is access and then it is e-courts. Both of them are very much important. All right, why it is important? Because it talks about access कि ठीक है, ई गवर्नेंस की बात तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसकी एक्सेस
कितनी है और कहां पे है। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं कि डिजिटल डिवाइड, ये की फ्रेज आप लोग सीधा सीधा कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ध्यान रखिएगा, डिजिटल डिवाइस इज द की। इट इज एक्चुअली अ की फ्रेज, डिजिटल डिवाइस। जहां कहीं भी आपसे ई गवर्नेंस की बात की जाए या ई लिटरेसी की, ई एजुकेशन, ई जस्टिस, किसी भी चीज की बात करें हम लोग, तो वहां पे हम लोग डिजिटल डिवाइड की बात करेंगे। और उसमें बोलते हैं डेटा जो है कि सिर्फ 28% ऑफ द वुमेन इन द रूरल एरियाज हैड एक्सेस या हैव एक्सेस टू द इंटरनेट बिटवीन 2020 टू 2022, जो कि बहुत क्रिटिकल फेज था। आप इस फेज को अगर देखते हैं तो ये लॉकडाउन वाला फेज है। उस फेज की हम बात करें कि ओनली 28% ऑफ द वुमेन इन द रूरल एरियाज हैव access to the internet between this period. Now, moving on, only 41.3% of the schools, only 41.3% of the schools had computers and 24.5% of the to the internet. मतलब इतने परसेंट स्कूल्स को किस चीज का एक्सेस था? कंप्यूटर का। और इतने परसेंट ऑफ द स्कूल्स को किस चीज का था? एक्सेस इंटरनेट का, जो कि बहुत ही ब्लीक डेटा शो करता है। तो अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उस स्कीम के अगेंस्ट अगर आप कुछ डेटा कोट करना चाहें तो आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ई कोड्स। और ये बहुत ही इंपैक्टफुल रहा है इन डिस्पोजिंग द केसेस थ्रू ई कोड्स। HC has disposed 32.71 million cases, whereas district courts have disposed 42.88 million केसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और आप सभी को इस डेटा को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये डेटा आपके लिए बहुत काम का है। राइट, आप कहीं पे भी ई गवर्नेंस की बात होगी, आप सक्सेस में ई कोड्स का एग्जाम्पल डालेंगे और फेलियर में डिजिटल डिवाइड का एग्जाम्पल डालेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Alright, so moving on to the next part, that is सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइक यूपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो, कहीं पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे जब कभी भी आपसे क्वेश्चन आए, दो तीन पॉइंट पे बात कर सकते हैं, एक बोरोइंग लिमिट की और एक 15th फाइनेंस कमीशन की। और भी चीजें हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं, सरकार या कमीशन जो कि इंटर स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे ही फॉर्म्ड है, या पुंछी कमीशन की हम बात कर सकते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो डेटा की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्योर फैक्ट हम देने की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्ट एक कोट कर सकते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से कितना स्टेट को देने के लिए बोला है? 41%। राइट, तो एक ये हो गया। और उसके बाद हो जाता है क्या? बोरोइंग लिमिट्स। बोरोइंग लिमिट्स जो है ना, वो बढ़ा दिया गया है। पहले 3% हुआ करता था, अब 5% ऑफ द स्टेट जीडीपी बोरो कर सकता है कोई भी स्टेट। राइट, तो ये हमारा किस चीज के रिलेटेड हुआ? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिलेटेड डेटा हुए। राइट, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू लोकल गवर्नमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकल गवर्नमेंट्स, बीट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स, कहीं पे भी स्टेट पीसीएस की बात जरूर होती है। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे तो टोटल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कितने हैं अक्रॉस कंट्री? आर 2,60,512। कब का डेटा है ये? जनवरी 2019। इसका मतलब अभी हो सकता है कि पीआरआई कुछ बढ़ भी गए हो, क्योंकि 4 साल का डिफरेंस है। राइट, ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एक तो वो हो गया हमारे पास कि टोटल पीआरआई कितने हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं? 31 लाख। इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं? 14 लाख अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के डेटा। राइट, फंड यूटिलाइजेशन ऑफ पीआरआई 78%। कहां जाता है 22%? राइट, ये 22% और यूटिलाइज होना चाहिए था, जो कि पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। राइट, अब हम मूव करते हैं कहां पे? वी आर मूविंग ऑन टू अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे बोलते हैं कि टोटल यूएलबीज जो हैं, टोटल यूएलबीज जो हैं वो कितने हैं? 3700 यूएलबीज हैं, जिसमें 100 कॉर्पोरेशन है, 1500 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है
और 2100 नगर पंचायत हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड कितना है? कैंटोनमेंट बोर्ड टोटल 56 है, राइट। उसके बाद हम जब देखें यूएलबी फंडिंग, ओन सोर्सेज ऑफ फंडिंग जो है वो 43% हो गया है 2017-18 में, जबकि 2007-8 में ये 55% हुआ करता था। मतलब कि ये कम हो गया है, जो कि नेगेटिव एग्जाम्पल्स में हम लोग इसको आराम से कोट कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, उसके बाद हम आते हैं, सो वी हैव डन व्हाट, लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स हमारा हो गया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स वी आर डन, टोटल नंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फंड यूटिलाइजेशन ऑफ पीआरआई, टोटल अर्बन लोकल बॉडीज, और उसके बाद यूएलबी फंडिंग की बात कर ली। नाउ मूविंग ऑन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये हम लोगों को कोट करना ही चाहिए, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तो इंपॉर्टेंट भी होता है। तो क्वेश्चन आर की बात करते हैं। क्वेश्चन आर एक आर है, एक टाइम ड्यूरेशन है, बेसिकली लेमेंस लैंग्वेज में बात करें, नो टेक्निकल टॉक्स। एक ड्यूरेशन है जो कि पार्लियामेंट में दिया जाता है, और उसमें क्या करते हैं एमपीज जो है वो एग्जीक्यूटिव जो कि मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो वो उसको हम लोग क्वेश्चन आर कहते हैं। तो पीआरएस का ये डेटा है जो कि फर्स्ट सेशन ऑफ 17th लोकसभा के रिलेटेड है। उसमें क्या है कि 95% ऑफ इट्स एस्केड्यूल्ड टाइम लोकसभा ने फंक्शन किया है। 95% ऑफ व्हाट, ऑफ इट्स एस्केड्यूल्ड टाइम लोकसभा ने फंक्शन किया है, ऑलराइट। उसके बाद राज्यसभा ने कितना फंक्शन किया भाई? राज्यसभा ने फंक्शन किया है 65% ऑफ द 65% of the what? 65% of the total time, right? Now, 36% of the questions were answered orally. देखो ये गलत है, मतलब गलत बात है। 36% of the questions were answered orally in Lok Sabha and the highest in the last 20 years। मतलब कि आंसर्स जो है ना वो रिटन में ज्यादा दिए जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू ओरल। अब ओरल क्यों आंसर किया गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानना पड़ेगा। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, इस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जानना होगा। तो ओरली का रीजन एक हम दे सकते हैं, सरकार दे सकती है वैलिड रीजन, बट दिस इज व्हाट इट इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड इन लास्ट 20 years, इट हैज बीन द हाईएस्ट राइट इन द पार्लियामेंट। तो इसको हम लोग नेगेटिव एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। नाउ बिल्स रेफर टू द कमिटीज। देखो क्या होता है पार्लियामेंट में बिल आता है, ये हम लोग प्रोसेस अगर आप नहीं जानते हैं, यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी पॉलिटी, बट सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आई एम अज्यूमिंग यू टू नो द प्रोसेस ऑफ enacting a legislation in parliament। so तो एक स्टेज होता है जो मतलब जब हम लोग लॉ पास कराते हैं तो क्या होता है कि बिल आता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर डिफरेंट स्टेजेस से जाता है, उसमें एक कमिटी स्टेज होती है। तो उसमें क्या होता है कि बिल्स रेफर टू कमिटीज, उसमें हम लोग देखते हैं कि इन 17th लोकसभा 11% ऑफ ऑल बिल्स जो कि कहां पे गया था, कमिटी को रेफर किया गया था, जबकि ये 17th लोकसभा की बात हो रही है। कंपैरिजन अगर करें तो 15th लोकसभा में 71% ऑफ ऑल बिल्स कहां गया था, कमिटी को रेफर किया गया था। तो ये भी नेगेटिव ट्रेंड है, इसको भी हम लोग नेगेटिव डेटा में ही कोट करेंगे। देखो आपको ना न्यूट्रल होना होगा। जो द पीपल हु नो मी नोज माय इंक्लिनेशन, राइट, दोज हु डोंट, you should not, right? That is irrelevant. But what I want to mean, whether or not you support the government in examination, when you write the answers, you'll have to quote the facts, and these are the facts that we are giving to you so that you can mention it in exams. But completely critical नहीं होना है, सिर्फ नेगेटिव डेटा नहीं देना है, उसके लिए हम लोग को बैलेंस करना होगा पॉजिटिव्स भी दे करके। तो बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। ये हम आंसर राइटिंग की, अगर मेरे को मौका मिला मैं यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अपने आंसर राइटिंग्स के मैं डालूंगा, सो दैट स्टूडेंट्स एट अ वाइडर लेवल वो समझ सके कि हाँ किस तरह से आंसर लिखना है, क्या करना है, राइट। सो ये हमने देखा कि बिल्स रेफर टू द कमिटीज, उसमें देखा कि 11% हो गया, जबकि 71% था 15th लोकसभा में, जो कि बहुत ही डिफरेंस है, राइट।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कमिटी अटेंडेंस. कमिटी इस बार कितना 50% अटेंडेंस रहा है सिंस 2014-15. ये भी वंस अगेन नेगेटिव साइन है, राइट. नाउ वोटर टर्नआउट क्या हुआ, अब सॉरी पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में क्वेश्चन आर हो गया, बिल्स रेफर टू द कमिटीज हो गया, एंड कमिटी अटेंडेंस. ये तीन चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं, राइट. नाउ इलेक्शंस पे हम लोग आते हैं, ये नेक्स्ट है. जब हम लोग इलेक्शन पे आते हैं तो इलेक्शन पे आकर के देखते हैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, और वो चीजें क्या है, एक तो वोटर टर्नआउट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वोटर टर्नआउट क्या है भाई? वोटर टर्नआउट इट इज 67.4% इन 17th लोकसभा, हाईएस्ट एवर टर्नआउट. कैन यू जस्ट इमेजिन, इट इज हाईएस्ट एवर टर्नआउट. और मोस्ट इंटरेस्टिंग इज, आप वुमेन एम्पावरमेंट में ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं, 67.18% ऑफ द वुमेन वर had voted, and it is a better performance than men. Men were close enough. It is 67% only, right? तो समझ लो मोदी जी को जिताने में किसका हाथ है, राइट. तो women have fared better than men in voter turnout, which is a good symptom. बिहार में भी वोटर टर्नआउट में वुमेन का परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, एंड दैट इज अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्शन फंडिंग. 75% इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू रूलिंग पार्टी, लाइक और वो कितना था, सम कितना टोटल किया जाए तो 3400 crores. कहते हैं ना कि अब इसको अलग तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, बट कहते हैं ना कि वो उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, राइट. तो जो भी चल रहा है ना, उसी पे आप अपना फंडिंग करते जा रहे हैं. तो 75% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर लाइक डोनेटेड टू द रूलिंग पार्टी, एंड अमाउंट कितना था, इतना. इसको आप नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव में भी, कुछ भी आप उस तरीके से अपना जो भी स्टैंड ले आप उसको जस्टिफाई करने में इस डेटा को यूज कर सकते हैं, राइट. स्टैंड देखो कुछ भी लो, बहुत ज्यादा एब्रप्ट स्टैंड नहीं लेना चाहिए, बट स्टैंड आप जो भी लो आप उसको जस्टिफाई करना नहीं भूलना, राइट. और वो भी वैलिड पॉइंट्स के साथ. नाउ इलेक्शन स्पेंडिंग बिटवीन ₹55,000 to 60,000 crores वर स्पेंड इन 2019 लोकसभा and assembly elections. Can you just imagine the sum that we are spending? And that's the reason one nation and one election becomes important. ये आप one nation and one election, ये एक क्वेश्चन भी था 68 बीपीएससी में, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, ये वाला डेटा कोट कर सकते हैं कि इतना ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. यहां पे लिखा हुआ भी है कि 100 crores पर कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रोक्सीमेटली खर्च होता है. और ये डेटा किसका है? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का ये डेटा है. नाउ अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है? 97.5% ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड पार्टीज ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, और इसमें इंक्रीज हुआ है, 2 टाइम इंक्रीज इन अ डिकेड. लास्ट 10 years में अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की 2 times इंक्रीज हुआ है. रिपोर्ट किसका है? एडीआर रिपोर्ट का. जो भी मैं इंस्टीट्यूशन से यहां पे मैंने कोट किया हुआ है ना, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और आप इसको सीधा सीधा कोट कर सकते हो एज पर लाइक सोर्स ऑफ द डेटा. यू जस्ट डोंट हैव टू. अब जैसे हम लोग एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं ना, उस डिस्कशन में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं कि कुछ भी इन द सेंस कि हाँ यार 85%, राइट. अब 85% का ना आपको सोर्स बताना होगा, तभी आपके बात में ना लेजिटिमेसी आएगी. मैं बोल दूं कि मैं कहीं भी जाकर के बोल दूं रैंडम कि 85% ऑफ द पार्टीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड और समथिंग लाइक दैट, बट अगर मैं सोर्स अपने डेटा का नहीं बताता हूं, तो माय पॉइंट विल नॉट बी टेकन एज अ वैलिड पॉइंट. एंड दैट्स द रीजन quoting the source of the data becomes very much important, right? And that's way beyond important. All right, so now moving on to the next. or next क्या है? next है criminalization of politics. ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी बॉडी का, बीट यूपीएससी और बीपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसी एग्जाम्स फॉर दैट मैटर. नाउ criminalization of
पॉलिटिक्स में जब हम लोग आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि 5097 क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स इन सुप्रीम कोर्ट। कितने? 5097। ऑलराइट। लोकसभा में 29% ऑफ द एमपीज फेस सीरियस चार्जेस। बहुत ही मतलब चिंता का विषय होना चाहिए। इट इज कॉज, इट शुड बी अ कॉज ऑफ concern for everyone. That is 29% of the MPs face serious charges, and there has been 109% increase since 2009। और उसके बाद हम लोग कन्विक्शन रेट देखते हैं तो कितना है भाई? 6%। कन्विक्शन रेट कितना है? 6% ऑफ द इज द कन्विक्शन रेट, जबकि नेशनल एवरेज कन्विक्शन रेट कितना है? 46%। तो आप लोग समझ सकते हो कि अपने पावर का, अपने पोजीशन का, अपने कॉन्टैक्ट्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा कि उनका कन्विक्शन रेट बहुत ही कम हो जाता है। आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, आप लोग एग्जाम्पल्स में नेम भी कोट कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ यू आर अवेयर अबाउट सम नेम्स, राइट? तो आप उन सारी चीजों को वहां पे कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, ठीक है? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज legal, judicial and police reforms. There are certain things, certain facts and data regarding legal, judicial and police reforms. देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पेंडिंग केसेस। पेंडिंग केसेस में देखते हैं 69,000 आर पेंडिंग केसेस आर पेंडिंग वेयर? सुप्रीम कोर्ट। 59 लाख केसेस आर पेंडिंग वेयर? 25 हाई कोर्ट्स में। 4.32 करोड़ केसेस आर पेंडिंग वेयर? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। उसके बाद एवरेज पेंडेंसी इन हाई कोर्ट्स जब देखते हैं तो ये हाईएस्ट है कहां पे? यूपी में, है ना? यूपी में कितना है? 11.34 ईयर्स, और वेस्ट बंगाल उसके बाद 9.9 ईयर्स। ये किसका डेटा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, राइट? 2022। तो पेंडिंग केसेस का आपको ये हुआ। देखो, मगअप नहीं करना है डेटा को। I'll tell you how to use this data. Just follow the step. Read the data, है ना? Write answers. Try quoting these data. अगर याद रहा तो ठीक है, कोट किया तो ठीक है, अदरवाइज कम बैक, है ना? एंड रिपीट द प्रोसेस। रिपीट द प्रोसेस, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। किसी भी फ्रेंड के साथ कॉमन डिस्कशन करो तो उनको आप बताओ कि सर ऐसा है, देखो इतना केस पेंडिंग है वहां पे, इतना केस। पापा से डिस्कशन में बता दो, किसी सिस्टर से बात करो, बहन से बात करो, भाई से बात करो, जिससे भी बात करो, जस्ट कोट द डेटा, राइट? एकदम फेंक के मारो, राइट? बट एग्जामिनेशन हॉल में फेंक के नहीं मारना है, वहां पे जगह पे मारना है। ये नहीं, शो ऑफ नहीं करना है कि हमको पता है तो लिख देना है, नहीं। जगह अगर अलाउ करता है तो आप वहां पे कोट कर दो। यूपीएससी में तो थोड़ा मतलब लिमिटेड रहता है स्पेस, तो उसमें तो एकदम जितना पॉइंट टू पॉइंट बात करो उतना बेटर। बीपीएससी में आप थोड़ी सी बातें बना सकते हो और वहां पे तो आप कोट कर सकते हो डेटा, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द वैकेंसीज। वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट्स वर फंक्शनिंग विद ओनली 778 जजेस अगेंस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है? 1108। 1108 कहां पे है? एक तो यही बहुत कम होगा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उससे भी कम हम लोगों ने मतलब जजेस रख रखे हैं। रिपोर्ट किसका है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड इंडिया हैव इतना जजेस की वैकेंसी 5850। अगर मतलब भर्ती वर्ती स्टार्ट हो जाए तो मतलब मजा ही आ जाए, है ना? सुप्रीम कोर्ट इज नाउ बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, दैट इज ऑफ 34 विद द एलिवेशन ऑफ 2 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू एपेक्स कोर्ट। अभी जाकर के उसका पोजीशन सही हुआ है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू वुमेन इन जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वुमेन जो है ना, वुमेन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम लोग इस पे भी बहुत सारे डेटा के साथ आएंगे जब हम सोशल इश्यूज डिस्कस करेंगे, तो आई विल बी बैक विद दोज डेटा। बट ये वुमेन का क्या है ना, वुमेन वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वुमेन इन जुडिशरी की बात करते हैं तो जस्ट 11 वुमेन एससी जजेस सिंस 1950। कैन यू जस्ट इमेजिन?
and mind you, America has never had a woman president. इंडिया में तो चलो दो दो हो गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एंड नाउ मुर्मू, राइट। ब्रिटेन में भी दो दो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, वो भी ठीक है। यहाँ पे तो एक मिसेस इंदिरा गांधी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर इन द वेरी पास्ट, उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर वुमन बनी ही नहीं, राइट। तो ये बड़ा ब्लीक डेटा है, जस्ट 11 वुमेन सिंस 1950, विच इज not acceptable, which should not be acceptable to us as a nation, right? Just 83 out of 680 judges in the high courts are women. बताइए, इसका परसेंटेज निकाल लो, 10% या मतलब 12-13% के आसपास। 90 होता है, अगर 700 के हिसाब से आप देख लो तो मतलब 10-15% के आसपास वुमेन है, जो वंस अगेन अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओनली 30% ऑफ द सबऑर्डिनेट जजेस आर फीमेल। यहां पे तो सीधा सीधा इन्होंने परसेंटेज लिख दिया है कि ओनली 30% ऑफ द सबऑर्डिनेट जजेस आर फीमेल। तो ये सारे डेटा ना आप कोट कर सकते हो, और वुमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात करे कोई, आप उनको ये सारे डेटा दे सकते हो कि कहां ही मतलब इन रियलिटी कहां वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। अगर जुडिशियरी में ही हम लोग प्रमोट नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां पे अगर वुमेन जजेस होती हैं तो वो एम्पावरमेंट का और बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट वो दैट विल बी सिंबॉलिक, एक्चुअली व्हाट इंपॉर्टेंट, दैट विल बी सिंबॉलिक, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है वहां पे होना, राइट। तो ये वुमेन इन जुडिशियरी हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कहां पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कोट कर देना, जहां इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स कहीं की बात आए तो वहां पे आपको कोट कर देना है कि हम लोगों का कहां पे पोजीशन है। 63rd पोजीशन है इन 2022। कहां पे थे हम लोग, 142nd में, कहां पे, 2014 में। तो ये करंट गवर्नमेंट जो है उनके आने के बाद ये डेटा बहुत सुधरा है। नाउ मूविंग ऑन टू पुलिस पर्सनल। अभी कितना है भाई, 137 पुलिस पर्सनल पर लाख, लेकिन यूएन ने क्या रिकमेंड किया है, 222 पुलिस पर्सनल पर लाख। तो वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हम लोगों को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वुमेन इन पुलिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 11.7% ऑफ इंडियाज पुलिस फोर्सेस, with Ladakh police leading the states or UTs with 28.3% of the women component, right? अब ये भी देख लो, सिर्फ 11.7%। तो इसमें हमें ये कोट करना है कि उनको, और आप उनको भर्ती करो भाई, उनको आप लो, उनके लिए रिजर्व, जैसे बिहार में रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप इस डेटा को भी आराम से कोट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कन्विक्शन रेट। द पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम लीड्स टू ओनली 47% ऑफ द कन्विक्शन रेट फॉर क्राइम्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन ऑफ 2012, राइट। नाउ प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट, जो ज्यादा नहीं होना चाहिए वो ज्यादा है, जो कम होना चाहिए वो, सॉरी, जो कम होना चाहिए वो ज्यादा है, जो मतलब ज्यादा होना चाहिए वो कम है। बहुत ही विडंबना है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 130% ऑक्यूपेंसी रेट है, राइट। उसके बाद टोटल ऑफ 5,54,034 पीपल इन द प्रिजन्स अक्रॉस इंडिया एज अगेंस्ट अ कैपेसिटी ऑफ इतना का कैपेसिटी है, लेकिन इतना भरे हैं। किसका डेटा है, एनसीआरबी का। 185 unnatural deaths of inmates in 2021, that should be a concerning, and then 150 inmates committing suicide। अब ये suicide है, planned murder है, क्या है, या just declaring as suicide, we do not know, but as per the report 150 inmates are committing suicide, that also must be concerning। Prisons in Delhi had occupancy rate of 183%, can you just imagine, 183%, all right, okay। So these are the data that we are seeing. Now we are going to under trials, right? Under trials, 67% of all prisoners are under trials as per NCRB data, and as per India Justice Report, share of under trial is more than 60% in 32 states। मतलब कि जो भी इनमेट्स हैं उनमें 60% से ज्यादा जो है वो कौन है, अंडर ट्रायल्स हैं, राइट।
टोटल इनमेट्स कितने हैं भाई? टोटल इनमेट्स है 4,78,600 एनसीआरबी डेटा। उसके बाद पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है? 152.80 पर लाख पर्सन। एंड बेस्ट पुलिस पॉपुलेशन रेशियो कहां पे मेंटेन्ड है? नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार एंड मणिपुर, राइट। तो ये रहा, ये हम लोगों का किस चीज के रिलेटेड डेटा हुआ? ये हम लोगों का डेटा हुआ लीगल एंड जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स, राइट। All right. Moving on to the last in the segment, and that is land reforms. Land reforms में हम लोग देखते हैं, land reforms में क्या क्या है? Land disputes, area under forest, as per ISFR report, and demand for woods. जब हम लोग land disputes की बात करते हैं, तो 2017 Access to Justice Survey को किसने किया था? दक्ष एक ऑर्गेनाइजेशन है। कहते हैं कि 67% ऑफ ऑल द सिविल सूट्स इन इंडिया आर रिलेटेड टू व्हाट? लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, एंड द एवरेज पेंडेंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट इज 20 years। एकदम ग्रेव सिचुएशन है, राइट। तो 66% ऑफ द ऑल द सिविल सूट्स किसके रिलेटेड है? प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक समझने वाली बात है। दूसरा हम लोग आते हैं एरिया अंडर फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स की जब हम बात करते हैं ऑफ द कंट्री, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर, और वो कितना है? 24.62% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। एज कंपेयर टू असेसमेंट ऑफ 2019, देयर इज एन इंक्रीज इन इतना 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन टोटल FTC, forest tree cover of the country. All right, moving on to the next, and that is top 3 states showing increase in forest cover are Andhra Pradesh, Telangana, and Odisha. Northeast reported the biggest losses in forest cover. यहां पे हम लोग को देखने की बात है कि ये यहां पे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उड़ीसा में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। नंबर 1, एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पे? एमपी में, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा में। और उसके बाद फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, वो कहां पे सबसे ज्यादा है? मिजोरम में, अरुणाचल में और मेघालय में। उसके बाद द प्रेजेंट असेसमेंट रिवील्स दैट 17 स्टेट्स एंड यूटीज हैव above 33% of geographical area under forest cover, and that is important, right? और उसके बाद डिमांड फॉर वुड मेड बाय फॉरेस्ट, वो देखते हैं 6.4%, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है सो दैट हम लोग अपने आंसर में कोट कर पाए। तो ये रहा हमारे एंड से किसका? पॉलिटी एंड लेट अस गो अप अ लिटिल, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फैक्ट सीरीज, फैक्ट्स, राइट। आप इसको प्योरली फैक्ट कह लो, फैक्टली कह लो, से व्हाटएवर यू वांट, बट these are the facts which you can mention in your answers directly. Also, don't forget to mention the sources of the data, right? Sources of the data. Okay, all right. So that will be all for today. Coming up next will be I can bring in like data for social sector or economic sector or IR sector or environment. I'll just see what next I'll bring, but these are the data sets I have already prepared, and I'll make another video for putting across that to you. Thank you so very much everyone for joining me, and for this PDF you can join my Telegram channel. I'll be putting this PDF over there so that you can access this PDF and you can quote it in exam. You can revise after getting a printout of this data, this PDF, right? So that'll be all. Thank you so very much. See you in the next video. Thank you all.